Welcome to my channel Computer Walla run by AK Pandey. Good morning. Today I am going to cover with how to get full marks in IP old, that is Java and MySQL. We all know that due to this Corona COVID-19 problem, our exams have been postponed, and it is to be held on 7th July 2020. Students are looking forward eagerly and waiting and waiting. It's long waiting time to our students, and they are maintaining a good patience. So within that situation, it is very important to maintain the patience and keep on practicing for the examination as earlier, without any delay, without any gap, without any tension. You should not take tension, rather you should be more consistent in your preparation, because you have got lots of time to prepare for the examination. And definitely, if you study hard and systematically, by preparing all chapters and solving so many sample papers, looking the marking scheme and comparing your solved questions with the solutions, and find out your lacunas, your problems. It will really help you in score 100 marks. No problem, you can get 70 out of 70. In practical, generally students get 25 and above. So in theory, out of 70, if you get 65 and above, it automatically goes to 95 and above, 90 and above. So this is very simple. Now let us start. So I thought that I should make a video for our old students, so that they can be encouraged for appearing in the coming exam and can get better marks. So let's start the tools and tips, how you can get better marks, 95 plus, 90 plus marks in informatics practices old course that was running with Java and MySQL code 265. So let us start. Listen to me carefully the tips. Definitely you are going to score good marks. Now let us discuss the distribution of marks first. As you know that networking and open standard, these two chapters in the beginning are having 7 marks, 10 marks. Then Java programming and HTML plus XML, it is just introductory, not too much course in HTML and XML. XML is only introduction. What is XML, and what is difference between HTML and XML? What are XML documents? Advantages of XML documents? Only this much. So Java programming plus HTML XML is going to have 25 marks. Out of these 25 marks, you can give 3 marks to HTML XML, maximum 4 marks you can say. Then relational database management system, MySQL and SQL queries, 30 marks. Quite scoring marks out of this MySQL, and it is very easy segment. You can easily score good marks out of it. It is very simple and easy to understand. You need not to write a big programs in MySQL, SQL queries. Only you have to learn the proper syntax of SQL command, how to write it. So you can get easily 30 marks. IT application, here in this front end, back end software and its qualities. Then e-commerce, e-business, that is e-business and e-commerce, same, e-learning, e-governance, all these. And thereafter identification of some GUI controls according to its purpose. इसके लिए आपको 5 मार्क्स यहाँ पर मिल रहे हैं. सो टोटल अगर मैं काउंट करता हूँ तो इट हैज़ बिकम 70 एंड 30 मार्क्स प्रैक्टिकल बिकमिंग 100. सो इस तरह से आप इसमें, अगर आप ज़्यादातर बच्चे जावा प्रोग्रामिंग से डरते हैं, हमारे कॉमर्स के बच्चे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है. जावा प्रोग्रामिंग से भी आप कुछ मार्क्स ले सकते हैं. इसके अलावा
नेटवर्किंग एंड ओपन स्टैंडर्ड कंप्लीट थ्योरी है, जिसमें आप 10 मार्क्स में ले सकते हैं। बहुत इजी आता है, 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, नॉट मोर देन दैट। तो बहुत डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आता है। एंड देयर आफ्टर you can score from MySQL. So easily you can get 50% marks, 50 to 60% marks. So let us discuss one by one. Networking and open standard, इसको आप तैयार कर लें, और जो कमज़ोर बच्चे हैं हमारे, MySQL क्वेरीज तैयार कर लें। MySQL में से आपको 30 मार्क्स और नेटवर्किंग में से 10 मार्क्स और IT एप्लीकेशन से 5 मार्क्स मिला करके आपके बन जाते हैं 30, 10, 45 बन जाते हैं। एंड इफ़ यू गेट सम मार्क्स फ्रॉम जावा ऑल्सो, you can go up to 50 and 55 marks. So it is not very difficult to get good marks in old informatics practices, Java and MySQL. Now what is to be prepared? Networking and open standard, आपको यहाँ से 10 मार्क्स मिल रहे हैं, जिसमें आपको पढ़ना क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग, wired technologies, coaxial cable, ethernet cable, optical fiber, wireless, bluetooth, infrared, microwave, and all that communication medias you have to study. What are these medias, and what are their advantage and disadvantage, what is their structure? This you can prepare all these things in points. It is easy to remember the points in place of learning the paragraph. देन नेटवर्किंग डिवाइसेस में मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, गेटवे एंड देयर फंक्शंस। ज़्यादातर हब और स्विच में डिफरेंस आ चुका है, तो इसलिए हब और स्विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीटर आपसे पूछा जाता है, कोई डिवाइस जो है, देयर आर टू नेटवर्क्स एट a distance of 1 kilometer, 2 kilometer, in between which device has to put so that they can maintain, the network can maintain the proper signal, proper strength of the signal. So obviously repeater, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हॉट क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, जिसमें रिपीटर आप लगा सकते हैं। मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर you can study. And there are different types of networks: LAN, MAN, WAN and PAN, local area network, metropolitan area network, wider area network, personal area network। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है। नेटवर्किंग टोपोलॉजी, स्टार, बस और ट्री के बारे में, ज़्यादातर स्टार और बस के बारे में पूछा गया है। सो गो फॉर स्टडिंग the structure of these topologies and its advantage and disadvantage over each other. Then varieties of networking protocols: HTTP, TCP/IP, PTP, remote access software, TeamViewer, etc., etc. And then networking security issues: cyber law, firewall, cookies, hackers, crackers। थ्रेट्स में आ जाएंगे आप, नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स में डिनायल ऑफ सर्विस, इंट्रूशन प्रॉब्लम, स्नूपिंग, एवरड्रॉपिंग। And then there are various types of SMS, voicemail, electronic mail, chat, video conferencing. All these content you can prepare, but out of this I think networking, communication media, types of network, and networking topologies, and networking devices, networking protocols, these are very important topics. Then in second chapter, open source concept, you have to study open source software, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, और कॉमन ओपन स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, वेब ब्राउज़र के कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद जो है वेब सर्वर के कुछ एग्जाम्पल। इंडियन लैंग्वेज कंप्यूटिंग में आपका इंडियन लैंग्वेज टेक्स्ट, फोनेटिक एंड की मैप बेस्ड एंट्रीज, ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स जो है चैप्टर 1 से और 2 से मिल सकते हैं, यूनिट 1 से 10 मार्क्स। नाउ वी कम फॉर जावा प्रोग्रामिंग एंड HTML XML। जावा प्रोग्रामिंग में आपका, आज मैं अभी इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, देन लेटर ऑन आफ्टर गिविंग द ओवरव्यू we will be solving a sample paper, then it will be quite clear to you and it will be easy for you to, I mean, solve any paper, because after giving you the solution of one paper, it will be quite
well known what is the structure of the paper. Since last so many years the structure of the paper is same, blueprint of the paper is same, उसी तरह के पेपर आ रहे हैं। तो आप पिछले 4-5 साल के सैम्पल पेपर्स को और क्वेश्चन पेपर्स को उठा करके देखेंगे तो क्वेश्चन वाइज एग्जैक्टली सिमिलर आप देखेंगे पेपर आ रहा है, तो उसे सॉल्व करने में इतनी ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। नाउ लेट अस कम फॉर सेकेंड क्वेश्चन, जावा प्रोग्रामिंग एंड HTML एंड XML। HTML में आपको ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट तो पूछा नहीं गया है कभी, प्लेसिंग BR और HR टैग इनके बारे में पूछा गया है, और HTML में और क्या नाम फॉन्ट टैग है या एंकर टैग है और IMG टैग है उसके एट्रीब्यूट, ऑर्डर लिस्ट ऑन ऑर्डर टैग और उसके एट्रीब्यूट, इस तरह से HTML से ये पूछा गया है। और XML में पूछा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML, व्हाट इज XML एंड व्हाट इज एडवांटेज ऑफ XML। तो इसका घुमा फिरा करके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ यू गो थ्रू वेरियस सैम्पल पेपर्स एंड क्वेश्चन पेपर्स यू विल फाइंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग आउट ऑफ इट। इन जावा प्रोग्रामिंग generally we are having output questions। अच्छा, पहला जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें जावा प्रोग्रामिंग में आपका यू विल फाइंड फंडामेंटल क्वेश्चंस, जैसे वेरिएबल्स क्या हैं, आइडेंटिफायर्स क्या हैं, कांस्टेंट्स क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, उनसे रिलेटेड हॉट क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंप्यूटर है, लिटरल है, वेरिएबल, कांस्टेंट्स, आइडेंटिफायर्स, इनका यूज़ करके या कोई छोटा एक्सप्रेशन लिख करके जावा का एक्सप्रेशन लिख दिया गया उसे इवेल्युएट करना हुआ, तो लाइक दैट इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में 7 या 8 नंबर और प्लस HTML XML से 2-3 नंबर का क्वेश्चन मिला करके 10 मार्क्स कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। That means you will have a question number 2 with Java, some programs or some questions from Java, and some questions 1 or 2 part hardly from HTML XML. Third question completely belongs to MySQL DBMS, fundamentals and elementary commands, describe command, use command, create this show table command, show databases command, and some select command also। तो इसमें आपका जो है MySQL से रिलेटेड क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 3 में होंगे 10 मार्क्स के, जो कि MySQL का फंडामेंटल एंड एलिमेंट्री कमांड्स होंगी, एक्सेप्ट सेलेक्ट एंड ऑल, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट आगे पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में। नाउ जावा प्रोग्रामिंग फोर्थ क्वेश्चन हैज़ 15 मार्क्स। जावा प्रोग्रामिंग आउटपुट, एरर करेक्शन, कन्वर्जन। आउटपुट आपको निकालने के लिए आएगा, आपको इसमें ट्रेसिंग आनी चाहिए पूरे प्रोग्राम की, सभी जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, इफ़, एल्स इफ, स्विच केस, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इनकी सब की आपको जो स्मॉल सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम विल बी गिवन एंड आउट ऑफ दैट यू हैव टू फाइंड आउट द आउटपुट। So working of these control structures you must know properly so that you can trace out the program in a proper way. And once we trace out the program by incrementing or decrementing or updating the values of the variables throughout the program, so ultimately output automatically comes at the end without any problem. But we should not get tired in between. Suppose there is a loop and it is iterating and iterating number of times, you are updating the values of the variables, and in meanwhile you have tired and you have confused somewhere and left updating the variable in between, so आपका क्वेश्चन फिर रॉन्ग हो जाएगा आंसर इसका आउटपुट। तो आपको करना क्या है कि आपको ग्रेजुअली जैसे प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर रन होता है, जैसे उसकी वर्किंग है, किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, उसी तरह से वेरिएबल्स की वैल्यू जितनी भी उसमें है उनको अपडेट करते जाइए एंड अल्टीमेटली एट द एंड यू विल गेट द आउटपुट। सो ये भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है, एक छोटा सेगमेंट होता है, थोड़ा सा लॉजिकल होता है।
Error correction, if you know the syntax of each statement properly, so correction of error can be done. इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, एरर जो भी आती है आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं एरर, तो आपको फिर से करेक्ट प्रोग्राम करना है, और जहाँ जहाँ आपने प्रोग्राम की लाइंस में एरर में करेक्शन किया है उस जगह पर अंडरलाइन करना है. मीन्स द होल प्रोग्राम हैज़ टू बी री रिटन by the student again, and wherever corrections you have made, there you have to put the underline. This is the process of attempting this question, error correction. Then conversion from if else if or to switch case, or switch case to if else if. It is very easy. इसका भी एक प्रोसीजर होता है, वो हम आगे आने वाले सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करेंगे. So there you can just convert if you know the proper syntax of switch case as well as if else if. So there is no problem in this question also. फॉर लूप से वाइल लूप में या वाइल लूप से फॉर लूप में कन्वर्ट करना भी बहुत इजी काम है, बहुत इजी है. तो आपको ये मैं समझाऊंगा थ्रू वेरियस एग्जांपल्स, देन यू विल कम टू अंडरस्टैंड एंड इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू टू कन्वर्ट दिस. नाउ GUI बेस्ड केस स्टडी एक प्रोग्रामिंग आती है. एक आपका GUI स्क्रीन दिया होता है जिसमें टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन और इस तरह के 4-5 कंट्रोल एंड बटन्स एक्सेट्रा, इस तरह से कंट्रोल्स लगा करके एक GUI स्क्रीन दिया होता है. एक प्रॉब्लम वहाँ पर डिफाइन की गई होती है. तो उसमें आपको इफ एल्सिफ 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 अगर रेडियो बटन है तो लगाना है, अगर चेक बॉक्स है तो इफ पर आप कोडिंग कर सकते हैं, सिंपल इफ पर. तो और ज़्यादातर रेडियो बटन और चेक बॉक्स में एक कॉमन मेथड है इज सेलेक्टेड मेथड. whether the radio button is clicked or not, whether the checkbox is clicked or not, for that checking you can go for using is selected method of both the controls. Then calculate the proper expression in case the condition is true. In case condition is false, we go for checking another condition. if else if में आप इस तरह से कर सकते हैं. इफ का मतलब होता है चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स में पहले चेक बॉक्स पर क्या कंडीशन उसमें इफ लगा लीजिए, दूसरे चेक बॉक्स पर क्या कंडीशन है उसके लिए फिर इफ लगाइए, तीसरे चेक बॉक्स पर क्या कंडीशन है उसके लिए फिर से इफ लगाइए. यानी कि हर चेक बॉक्स के लिए इफ लगाना है. और अगर रेडियो बटन, देयर इज अ सेट ऑफ रेडियो बटन यू आर यूजिंग, फॉर दैट यू हैव टू use if else if and so on. So in that way you can write the program. Then while solving the question paper, will be taking an example of GUI based programming also, so it will be very simple to you at that time. Fifth question. In this question you'll be given a single table and data आपका बहुत सारी रोज में फीड किया हुआ दिखाई पड़ेगा, टेबल दी गई होगी. So based on that table you might be asked number of commands of 10 marks. तो select command, insert command, update, delete and select command, select already written. So these commands can be used within the questions that have been asked in question number 5. These are the queries based on one table. Remember question number 5 MySQL का जो होगा एक टेबल पर बेस्ड क्वेरीज पूछी जाएंगी. उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि सेलेक्ट कमांड लगेगा, कि इंसर्ट लगेगा, कि अपडेट लगेगा, कि डिलीट लगेगा. ज़्यादातर सेलेक्ट लगता है. और सेलेक्ट कमांड में भी सेलेक्टिंग all columns, selecting specific column, selecting all columns with the condition, selecting specific column with condition. इसी क्वेश्चन में आपको ऑर्डर बाय का यूज़ कराया जा सकता है. और इसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको एग्रीगेट फंक्शन सम, मैक्स, मिन, काउंट, एवीजी भी यूज़ कराया जाए. या क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये फंक्शन यूज़ कराया जा सकते हैं एग्रीगेट. तो लेकिन इसमें जो है सिंपल क्वेरीज रहती हैं. ज़्यादातर एग्रीगेट क्वेश्चन एग्रीगेट पूछना है जिसमें भी पूछ सकते हैं, इसमें भी पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों में पूछा जा सकता है. सो इट इज ऑफ 10 मार्क्स. अगेन question number 6 again belongs to MySQL. There are two tables given. Before those two tables there is a structure given, already defined for a particular table. structure दिया होगा, उसको देख करके आपको टेबल क्रिएट करना है यूजिंग क्रिएट टेबल कमांड, 2 मार्क्स का. उसके बाद आपको उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की,
कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है प्राइमरी की फॉरेन की में, या कौन कौन सी प्राइमरी की फॉरेन की है, दोनों कॉलम दोनों टेबल्स में 2 टेबल्स दी होंगी, तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनके नाम बताने पड़ेंगे। इससे ऊपर 5th क्वेश्चन में वो कार्डिनलिटी और डिग्री के बारे में भी क्वेश्चन पूछ देता है क्वेश्चन नंबर 5 में। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपका टेबल क्रिएशन हो गया। उसके बाद जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की, एंड देयर आफ्टर 3 कमांड्स based on joining of 2 tables from the 2 tables given will be asked। 3 कमांड्स आपसे पूछी जाएंगी जो ज्वाइनिंग पर बेस्ड होंगी। आपने पढ़ा होगा इक्वी ज्वाइन, नॉन इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, नॉन नेचुरल ज्वाइन। तो उसके बेसिस पर 3 कमांड्स पूछी जाएंगी 2-2 नंबर की, 6 मार्क्स। और 2 मार्क्स में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे सकता है, and 2 marks for table creation, so completing 10 marks in question number 6 from MySQL. Now going to question number 7 has 5 marks. Here they will be asking any question belonging to e-learning, e-governance, e-commerce। Here spelling of learning LEARN कर लेना। e-learning, e-commerce, e-governance, फ्रंट एंड, बैक एंड, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है। 2+1 मार्क का क्वेश्चन होगा। देयर विल बी 3 पार्ट्स इन 7th क्वेश्चन। ए पार्ट 2 मार्क्स और 1 मार्क्स, बी पार्ट 2 marks or 1 marks, so 2 plus 1 3, and C part identification of GUI controls for the given purpose। आपको दिया रहेगा, पर्पस दिया रहेगा, आपको पता करना होगा कौन सा GUI कंट्रोल हम लगाएंगे, उसका नाम लिखना होगा। सपोज कीजिए लिखा है फॉर एंटरिंग द नेम, so obviously you will write text field। for selecting the sex, male or female, so you can write radio button। like that 4 controls have to be identified out of text field, radio button, checkbox, combo box, list box, and other controls। in case there are so many options, thousands of options, 50 options, 60 options, so we will go for, out of that we have to select only one, we will go for combo box। and if there are 3-4 options, out of that I have to select only one, we will obviously go to रेडियो बटन। सिमिलरली ज़्यादा ऑप्शंस होंगे तो आप चेक बॉक्स की जगह लिस्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कुछ गिने चुने ऑप्शंस हैं जिसमें से 1 और मोर कंट्रोल्स कैन बी सेलेक्टेड टुगेदर आउट ऑफ मल्टीपल कंट्रोल, तो वहाँ पर आप चेक बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। कोई बहुत बड़ा कमेंट देना है पैराग्राफ के फॉर्म में, तो ऑब्वियसली हम टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से ये 5 नंबर आपका कंप्लीट होगा। So now we have completed 70 marks। 10 plus 10 plus 10 30, बहुत इजी पेपर आएगा। 70 आउट ऑफ 70 आ सकते हैं आपके, ऑब्वियसली आ सकते हैं, लेकिन पेपर और प्रॉपर रिवीजन करके जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप विदाउट रिवीजन चले जाएं और आपको 70 आउट ऑफ 70 आ जाएगा। सो रिवीजन इज मस्ट फॉर दैट। सो लेट अस सी हाउ यू विल रिवाइज and how you will solve the sample paper। Sample paper is very important to solve in this regard। last year के आप I mean last years के 7-8 पेपर आप सैम्पल पेपर और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें, CBSE सैम्पल पेपर एंड क्वेश्चन पेपर ऑफ बोर्ड एग्जाम, then only you will have confidence how the paper structure will be and how the things will be done। So without any delay let us discuss one question paper। so question paper में आपको मैं 2018 का एक क्वेश्चन पेपर आपके लिए लाया हूँ और उसको डिस्कस करते हैं हम लोग along with marking scheme। as I told you that the very first question belongs to chapter number 1 and 2, that is open standard and networking। नेटवर्किंग फर्स्ट चैप्टर है आपको, ओपन स्टैंडर्ड सेकंड चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन आप देखें, फर्स्ट ए, ABC कंपनी वांट्स टू लिंक इट्स कंप्यूटर्स इन हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली टू इट्स ऑफिस इन सिडनी। नेम द टाइप ऑफ नेटवर्क दैट विल बी फॉर्म्ड। विच कम्युनिकेशन मीडिया शुड बी यूज्ड टू फॉर्म दिस नेटवर्क। वेरी सिंपल इट इज।
एक ऑफिस आपका दिल्ली में है और दूसरा ऑफिस आपका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। सो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया हमारे दो कॉन्टिनेंट हो गए, यू कैन से दो कंट्रीज हो गए, एंड इट इज़ having quite large distance between their offices. So obviously it is wider area network। बहुत ही सिंपल आंसर है, वाइडर एरिया नेटवर्क ये नेटवर्क फॉर्म होगा। इसमें ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा यूज़ किया जाएगा, तो आप केबल तो डाल नहीं सकते हैं, या फिजिकल मीडिया या वायर्ड मीडिया तो आप यूज़ कर नहीं सकते हैं, देयरफॉर इसमें ऑब्वियसली वायरलेस मीडिया हमें यूज़ करना पड़ेगा, एंड बेस्ट इज सैटेलाइट। सो एक नंबर आपको सैटेलाइट आंसर देने के लिए मिलेगा और एक आपको वाइडर एरिया नेटवर्क लिखने के लिए मिलेगा। बी पार्ट में हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्युनिकेशन मीडिया। इसमें से आपको देखना है कि कम्युनिकेशन मीडिया कौन सा नहीं है। माइक्रोवेव, ऑप्टिकल फाइबर केबल, नोड, रेडियो वेव्स। तो इसमें सबसे डिफरेंट आप देख रहे हैं कि नोड लग रहा है। नोड जो है वो क्लाइंट मशीन होती है किसी नेटवर्क पर, उसे हम नोड भी कहते हैं, क्लाइंट भी कहते हैं। ये किसी कंप्यूटर मशीन का एक दूसरा नाम है, सब्सटीट्यूटेड नेम है, तो इसलिए जो है ये डिफरेंट है। नोड इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आपका जो है आइडेंटिफाई विच ऑफ द above mentioned communication media or wired media and which one is wireless media। तो इसमें से एक नंबर तो आपको मिल जाएगा नोड के लिए, और दूसरा आपको चाहिए कि इनको लिखना है कि वायर्ड मीडिया कौन सा है और वायरलेस मीडिया कौन सा है। माइक्रोवेव ऑब्वियसली जो है ये वायरलेस मीडिया है, और ऑप्टिकल फाइबर जो है ये वायर्ड मीडिया है, रेडियो वेव भी वायरलेस मीडिया है। इस तरह से आप ये आंसर देंगे तो आपको 2 मार्क्स यू विल गेट। नाउ सी पार्ट देखें आप, दो दो नंबर के 5 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, कंप्लीटिंग 10 मार्क्स। राइट टू एग्जांपल्स ईच ऑफ सॉफ्टवेयर इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। एक आपको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना है और एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर लिखना है। 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि दो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और दो वेब ब्राउजर लिखने हैं जो ओपन सोर्स हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे लिख रहे हैं, लाइनक्स, एंड्रॉयड, FreeBSD, OpenBSD, and also many operating systems have been given। So out of it you can Ubuntu, BOS, BOSS, Linux। So out of these operating system you can write any two, and then open source web browser, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, all that, out of it you can write two open source web browser। So you are going to get half marks for each operating system and web browser। Now expand the following terms। GSM का आपको फुल फॉर्म बताना है। वेरी सिंपल, इट इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन या ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल ग्राफिक्स स्टिमुलर मीडिया। और आईपी का फुल फॉर्म आप जानते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो 1 मार्क फॉर ईच एक्सपेंशन। Now name the devices। This device constantly looks at all the data entering and exiting your connection। It can block or reject data in response to an established rule। मतलब ये एक ऐसी डिवाइस है या एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जो कॉन्स्टेंटली लुक्स एट ऑल द डेटा एंटरिंग एंड एग्जिटिंग योर कनेक्शन। सो ऑब्वियसली ये आपने कई बार पढ़ा होगा। फायरवॉल एक ऐसा सोर्स है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है फायरवॉल। सो पहले का आंसर आपका फायरवॉल है। दूसरा है दिस डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल नोड्स टू फॉर्म अ नेटवर्क। It redirects the received information only to the intended node। तो ये जो है आपका स्विच आंसर है इसका, कि जो भी सिग्नल आता है नेटवर्क पर और किस नेटवर्क पर किस मशीन को वो ट्रांसमिट करना है सिग्नल, एग्जैक्टली उसी मशीन को वो सिग्नल रीडायरेक्ट करता है। और ऐसी डिवाइस हमारी जो नेटवर्क पर यूज़ होती है दैट इज स्विच ओनली, वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। तो ऐसा ब्रॉडकास्ट करने वाला हब है। तो स्विच इज द सच डिवाइस दैट सेंड्स द सिग्नल टू द इंटेंडेड नोड ऑन द नेटवर्क। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स कंप्लीट हुए। 2 5 10 मार्क्स कंप्लीटेड।
नाउ इसमें आप देख रहे हैं कि आपको ओपन सोर्स से ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, बाकी जनरली जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये सभी आपके चैप्टर नंबर 1 नेटवर्किंग वाले चैप्टर से। Now, question number 2 belongs to my this Java programming as well as HTML XML. Question number 2. See here. Identify the invalid variable names. Question number 2 में आपको कुछ fundamental type चीजें जो है variable, data type, expression, operator, method ऐसी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आइडेंटिफाई द इनवैलिड वेरिएबल नेम, स्टेट द रीजन इफ इनवैलिड। मार्क्स स्पेस यूनिट, as you know that marks space unit is invalid variable because there should not be any space allowed. If we go through the rules of nomenclature of the variables, तो यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए मार्क्स और यूनिट के बीच में, इसलिए ये इनवैलिड है। प्रोडक्ट अंडरस्कोर 1 इट इज़ वैलिड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैलिड वेरिएबल है ये। और सेल्स 1 2 3 इज ऑल्सो वैलिड। 2 marks is invalid because any variable name should not begin with a digit. So this you have to write which one is valid and which one is invalid with the reason. Now coming to B part, write a data type of the variables that should be used to store marks of students. ऑब्वियसली आप मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स को आप फ्लोट में भी ले सकते हैं, डबल में भी ले सकते हैं, इंट बाइट शॉर्ट लॉन्ग, कोई भी डेटा टाइप। अगर होल नंबर में है तो इंट बाइट शॉर्ट लॉन्ग भी लिख सकते हैं, फ्लोट और डबल लिखते हैं तो पॉइंट्स में एक्सेप्ट होगा, दोनों ही सही माना जाएगा। ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट ए बी सी, इस तरह से आपको ग्रेड स्टोर करना है तो ऑब्वियसली ये कैर डेटा टाइप में होगा बिकॉज इट इज ऑफ सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स, इसलिए ये कैर टाइप होगा, स्ट्रिंग टाइप नहीं होगा। Now write examples of any two properties and two methods of JButton. JButton की कोई दो प्रॉपर्टीज और दो मेथड्स लिखने हैं, तो JButton की आप दो प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि बैकग्राउंड, फॉन्ट, लेबल, टेक्स्ट, नेम, एडिटेबल, इनेबल्ड, all these. So out of that you can write any two properties. And method में obviously किसी भी बटन पर आप कोई टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो set text, उसे रिट्रीव करना चाहते हैं get text, उसे इनेबल करना चाहते हैं बटन को set enabled, और अपीयर डिसअपीयर करना चाहते हैं मेथड सेट विजिबल यूज होगा, सेट एडिटेबल भी यूज कर सकते हैं, इज सेलेक्टेड, इज, ये सारे सेट विजिबल वगैरह आप इसमें डाल सकते हैं। तो सेट टेक्स्ट एंड गेट टेक्स्ट इज अ बेटर ऑप्शन, इसमें आप ये इजी जो आपका मेथड है, दो कॉमन मेथड्स हैं, उसे आप लिख सकते हो। नाउ कमिंग टू डी पार्ट, राइट द पर्पज ऑफ HTML डिस्टिंग्विश बिटवीन p टैग एंड br टैग। यहाँ पर आपका डी पार्ट में p टैग और br टैग में डिफरेंस लिखना एज वेल एज HTML का पर्पस क्या है। HTML is hypertext markup language to create web pages, to design web pages. और p टैग जो है एक पैराग्राफ टैग होता है, it introduce the paragraph, while br tag is used to introduce a line break on the web page. जब भी आप p टैग यूज करेंगे तो वहाँ पर एक पैराग्राफ नई लाइन से जो है स्टार्ट होता है कंटेंट लिखना, और जब आप br टैग यूज करते हैं तो वहाँ पर br टैग में क्या होता है कि एक लाइन ब्रेक हो जाती है, फ्रॉम द करंट लाइन the cursor goes to new line. So that is what br tag, break line. Now e part distinguish between, यही आपका HTML से आया है 2 नंबर का, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं। देन ई पार्ट कहता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉम्बो बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स, व्हेन वुड यू प्रेफर यूजिंग देम ओवर रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स में क्या डिफरेंस है। कॉम्बो बॉक्स में यू कैन सेलेक्ट वन आइटम एट अ टाइम फ्रॉम सेट ऑफ आइटम्स, एंड इन लिस्ट बॉक्स you can select one or more items out of list of items. तो ये डिफरेंस है, आपको लिखना है। इसमें एक ऑप्शन सेलेक्ट किया जा सकता है, इसमें एक या ज़्यादा ऑप्शन भी सेलेक्ट किए जा सकते हैं। ये प्रेफर कब किए जाते हैं कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स, रेडियो बटन और चेक बॉक्स पर कब प्रेफर किए जाते हैं, जब भी नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा हो तो देन वी विल गो फॉर कॉम्बो बॉक्स or in place of radio button, and when number of items are more and more we will go for using list box in place of checkbox. This is the answer, getting 2 marks. Rewrite the following code using switch statement.
स्विच स्टेटमेंट से इस कोड को लिखना है। इसमें बहुत आसान होता है। इफ कोड इज इक्वल टू ए देन अलाउंस इक्वल टू दिस, एल्स इफ कोड इक्वल टू दिस देन अलाउंस इक्वल टू दिस, एल्स अलाउंस इक्वल टू दिस। तो इसको आप सबसे पहले लिखेंगे, इसमें जिस पर चेकिंग हो रही, जिस पर इफ लगा है जिस वेरिएबल पर, उसे स्विच में डाल दिया जाएगा, लाइक हियर स्विच कोड ब्रैकेट में। उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। जो यहाँ पर चेकिंग है, अब कोड इज इक्वल टू नहीं लिखना है बल्कि लिखना है केस सिंगल कोट में ए कॉलन। उसके बाद ये लाइन एज इट इज हो जाएगी, अलाउंस इक्वल टू 35, और साथ में आपको ब्रेक स्टेटमेंट लगाना होगा। हर स्विच के ब्लॉक में आपको ब्रेक स्टेटमेंट देना होगा। देन एल्स इफ कोड इज इक्वल टू बी, जहां पर है यहाँ पर आ जाएगा केस बी। केस कोड इज इक्वल टू बी नहीं लिखना है, केस बी कॉलन। देन इसके अंदर जो कोडिंग है अलाउंस इक्वल टू 32 एज इट इज एंड ब्रेक। एल्स को आप डिफॉल्ट में लिखते हैं। इफ एल्सिफ 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 जो एल्स स्टेटमेंट होता है उसे हम डिफॉल्ट में ले जाते हैं। डिफॉल्ट अलाउंस इक्वल टू 2000 लिख करके लास्ट में करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा स्विच ब्लॉक का, और लास्ट में ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है। So that's all about this question, how you can convert this I mean if else if statement into switch statement program। अगर कोई बच्चा यहाँ केस ए की जगह केस 65 भी लिख देता है या केस 66 भी लिख देता है तब भी सही माना जाएगा, क्योंकि ए का यूनिकोड जो है वो 65 है और बी का यूनिकोड 66 है। लेकिन हमें यूनिकोड पर जाना ही नहीं है। केस साफ साफ लिख रहा है केस ए केस बी, आई मीन कोड इक्वल टू ए कोड इक्वल टू बी, so no need to go for using the unicode unnecessarily। so this is all about question number 2। question number 2 में आपने देखा एक नंबर आपका ये जावा से है, दूसरा भी जावा से है, तीसरा 2 नंबर का ये जावा से है, ये 2 नंबर का केवल आपका HTML से है, बाकी XML से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और लास्ट के ई और एफ पार्ट भी आपके जावा से है। यानी सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीटली जावा से है along with any question from HTML or XML। Now coming to third question, third question completely belongs to MySQL। What is MySQL used for? Abhay wants to start learning MySQL, from where can he obtain the MySQL software? MySQL किस लिए यूज किया जाता है? MySQL is an open source RDBMS using for the management of database। Management of database involves creation, insertion, deletion, updation, whatever varieties of operations can be done on the database। अब अभय को चाहिए कि वो जो है MySQL डाउनलोड करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है सीखने के लिए, तो कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली mysql.org पर जाएगा, वहाँ से वो क्या करेगा, MySQL डाउनलोड कर लेगा। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, खरीदना नहीं है, और उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेगा। देन ही कैन स्टार्ट यूजिंग MySQL। तो दिस इज द आंसर अबाउट ए पार्ट। नाउ बी पार्ट कहता है इन द टेबल स्टूडेंट प्रिया वांटेड टू इंक्रीज द मार्क्स। कॉलम क्या है? कॉलम का नाम है मार्क्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स बाय 5। 5 नंबर इंक्रीज करना है कुछ स्टूडेंट का, those who have got marks below 33। she has entered the following statement। तो पहली चीज तो अगर आप जो है मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हैं किसी भी टेबल में, तो सेलेक्ट कमांड यूज नहीं होगा, यहीं पर गलत दिख रहा है, अपडेट कमांड का इस्तेमाल होगा। और मार्क्स प्लस 5 फ्रॉम ये सब नहीं यूज होगा, आपको अपडेट कमांड यूज करना है इसके लिए, क्योंकि 5 नंबर इंक्रीज करना है परमानेंटली टेबल में। किसका? कंडीशन दी हुई है जिसके मार्क्स 33 से बिलो हों। तो इसके लिए हमारी कमांड सेलेक्ट नहीं होगी बल्कि अपडेट होगी। आप यहाँ से देख सकते हैं अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 5 वेयर मार्क्स लेस देन 33। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें अपडेट कमांड आप प्रॉपरली यूज करेंगे, कंडीशनल है इसलिए वेयर कमांड यहाँ पर लगेगा, वेयर क्लॉज लगेगा। अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 5 वेयर मार्क्स लेस देन 33। दिस इज द आंसर। आइडेंटिफाई एरर, ऑब्वियसली एरर थी, हमने उसको करेक्ट कर दिया। नाउ नेम द
data type that should be used to store account code like A1001 of customers. इसका data type बनाना है कि अगर मैं A1001 इस तरह का डेटा स्टोर करना चाहता हूँ तो इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली कैर या वेर कैर होना चाहिए, किसमें इसमें कैरेक्टर भी है, न्यूमेरिक भी है, प्योर न्यूमेरिक नहीं है, तो कैर और वेर कैर दोनों चलेगा इसमें। Now, second part of C, name two data types that requires data to be enclosed in quotes. ऐसे दो डेटा टाइप बताइए जिसमें डेटा जो है वो कोट्स में इनक्लोज किया जाता है, इन्वर्टेड कॉमास में। इन दिस इज इन रिगार्ड विद माई एसक्यूएल, तो इसलिए आप यहाँ पर कैर और वेर कैर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन टेल कैर डेटा टाइप एंड वेर कैर डेटा टाइप आर इनक्लोज्ड विद इन कोट्स। यहाँ तक कि आप डेट भी जो है and date data type can also be written क्योंकि date is also written within single quote. Now D part, given the date table player with the following columns: p code points, there are two columns, p code 1 2 3 and points 50 null and 40. Write the output of the following statement. Select avg points from player. See, एवीजी एवरेज ऑफ पॉइंट्स निकालना है, तो एवरेज पॉइंट का 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 3 ना हो करके, क्योंकि एक वैल्यू नल है, ये नॉन नल वैल्यूज पर काम करेगा, इसलिए 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 करेगा। कुछ बच्चे इसको क्या कर देते हैं, 3 रो हैं इसलिए वो 3 से डिवाइड कर देते हैं, दैट बिकम्स रॉन्ग। सो यू हैव टू राइट द आउटपुट लाइक दिस। कॉलम हेडिंग लिखेंगे, कॉलम हेडिंग वही होती है जो आपने सेलेक्ट देख लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, सेलेक्ट में जैसे लिखा हुआ है इसी तरह से आपका कॉलम हेडिंग में आपको इस तरह से लिखना है, एबीजी ऑफ पॉइंट्स, एंड उसके नीचे आपको 45 आंसर लिखना है। नाउ सेलेक्ट काउंट पॉइंट्स फ्रॉम प्लेयर। अब पॉइंट्स काउंट करना है तो काउंट फंक्शन भी नॉन नल वैल्यूज पर ही बाय डिफॉल्ट काम करता है, इसलिए ये तीन वैल्यूज ना काउंट करके नॉन नल वैल्यूज 50 और 40 को काउंट करेगा। 50 is 1 and 40 is 2 और देयरफॉर इट विल रिटर्न योर आंसर काउंट पॉइंट्स, आपको 2 रिटर्न करेगा। गॉट इट? नाउ in E part you can see class table has column roll number and name. The following statements are executed. Set auto commit equal to 0. Transaction control statements आपने पढ़े होंगे, TCL commands। तो TCL commands में commit, rollback, auto commit, save point, all that those commands are there. auto commit अगर आप 0 कर देते हैं तो किसी भी DML स्टेटमेंट को लिखने के बाद, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इनको सबको लिखने के बाद ऑटोमेटिकली वो कमिट नहीं होता है, ऑटोमेटिकली वो सेव नहीं होता है। until we write commit command it will not be saved, it will be saved temporarily। तो ये ऑटो कमिट का यूज़ है। ऑटो कमिट उसने ऑफ कर दिया, फिर एक लाइन इंसर्ट की, उसके बाद कमिट किया, तो ये लाइन परमानेंट हो जानी चाहिए टेबल में। उसके बाद क्या कर रहा है, अपडेट क्लास सेट नेम इक्वल टू राजीव वेयर आईडी इज इक्वल टू 5। यहाँ पर इस पेपर में एरर है, आईडी की जगह इसे रोल नंबर होना चाहिए या रोल नंबर की जगह आईडी होना चाहिए, क्योंकि द एग्जामिनर इज टेलिंग यू दैट देयर आर 2 कॉलम्स रोल नंबर एंड नेम, तो आईडी कहाँ से आ गया, एक चीज़ ये है। तो इसको अगर मैं रोल नंबर कंसीडर करके देखूंगा और आईडी कंसीडर करके देखूंगा तो आपको फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। सेव पॉइंट यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा दिया ए, फिर इसके बाद इंसर्ट किया रोल नंबर 6 का रिकॉर्ड 6 एंड क्रिश, देन सेव पॉइंट बी, इंसर्ट 7 एंड फिरोज, ये भी इंसर्ट किया। उसके बाद लिख रहा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, उसके बाद क्लास टेबल में से सेलेक्ट स्टार कर रहा है, तो व्हाट शुड बी डिस्प्लेड। आपने यहाँ एक रिकॉर्ड जो है डिस्प्ले किया है 5 राजीव, और राजीव को स्पेलिंग चेंज कर दिया RAJEEV, तो वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर लिखा होता रोल नंबर इक्वल टू 5 तब अपडेट होता, अभी तो आईडी इक्वल टू 5 है तो एरर दे देगा। और तो ऐसे केस में आपको अपने दिमाग से सोचना है कि अगर आईडी इज इक्वल टू 5 की जगह रोल नंबर इक्वल टू 5 होता तो मैं क्या लिखूंगा, अगर आईडी इज इक्वल टू 5 है तो मैं क्या लिखूँ। तो ये तो अपडेशन होगा नहीं, आईडी इक्वल टू 5 है तो। अगर ये रोल नंबर इक्वल टू 5 होता तो होता अपडेशन। तो दोनों केस में आपको रिस्पॉन्स दे देना चाहिए। दो तरह के रिस्पॉन्स आप बना करके दे देंगे कि अगर आईडी इज इक्वल टू 5 है तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या आउटपुट आएगा,
अगर रोल नंबर इज इक्वल टू 5 होता तो क्या रिस्पॉन्स आता, और इस पर दिखा देते परहैप्स देयर इज सम एरर ऑन दिस लाइन। इसको आपको लिख करके वहाँ पर अपने आप मैनेज करना होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी टीचर आपको बताने के लिए नहीं होगा कि इसमें क्या एरर है। नोबडी नोज कंप्यूटर ओवर देयर, वाइज द टीचर्स हु आर working as invigilator in your class, they can't make any modification in the paper. Sorry. सो आप इसको देखने के बाद क्या होगा, आपका आउटपुट देखिए यहाँ पर कि फर्स्ट केस में जो आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ तक, ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास जब आप करेंगे तो राजीव, क्रिश और फिरोज आएगा, ठीक है। आउटपुट ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट और आउटपुट ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रोल बैक टू बी कर दिया अगर आपने, तो ये 7 हट जाएगा, रोल नंबर 7 वाला रिकॉर्ड हट जाएगा रोल बैक करने पर, यानी रोल बैक टू बी का मतलब यहाँ से यहाँ तक अंडू हो जाएगा, यानी ये इंसर्ट कमांड कैंसिल हो जाएगी, तो आपका राजीव और क्रिश रह जाएगा। यहाँ पर राजीव को RAJEE कर रहा है, अपडेट कर रहा है, और अपडेट तब होगा इफ इट इज रोल नंबर इक्वल टू 5, ठीक है। दूसरा केस इन्होंने बना दिया आउटपुट के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो अगर आईडी नहीं है रोल नंबर है तो राजीव का राजीव ही रहेगा, वो अपडेट नहीं होगा। RAJIV लिख दिया है, क्रिश लिख दिया, फिरोज लिख दिया पहले सेलेक्ट कमांड में जो आपका है। दिस सेलेक्ट कमांड विल टेल 5 राजीव, 6 क्रिश एंड 7 फिरोज। ये RAJEE अपडेट नहीं हुआ, उसको अपडेट नहीं किया सिंस आईडी वाज रिटन इक्वल टू 5 इन प्लेस ऑफ रोल नंबर इक्वल टू 5। और इसका सेकेंड केस क्या होगा, ऑब्वियसली आपका ये जब रोल बैक कर जाएगा 7वां रोल नंबर अप टू से पॉइंट बी रोल बैक कर गया, तो ये इंसर्ट कमांड कैंसिल हो गई, तो आपका 5 रोल नंबर का रिकॉर्ड और 6 रोल नंबर का रिकॉर्ड यहाँ अपीयर होगा। सो एनी वन केस कैन बी रिटन, एग्जामिनर विल टेक केयर ऑफ इफ देयर वाज एनी मिस्टेक इन द क्वेश्चन पेपर। ऑब्वियसली वो अपने आप देख लेते हैं, एग्जामिनर्स को गाइडलाइंस होती हैं CBSE से कि ये क्वेश्चन पेपर में ये गलत है, इसलिए इसका बेनिफिट ऑफ डाउट बच्चों को देना चाहिए। नाउ F part of third question, name SQL single row functions for each of the following that returns a number। कोई ऐसा आपको फंक्शन का नाम लिखना है जो कि नंबर रिटर्न करता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर लेंथ फंक्शन है, InSTR फंक्शन है, राउंड फंक्शन है, ट्रंकेट फंक्शन है, ये सभी आपको नंबर रिटर्न करते हैं। रिटर्न्स लोअर केस लेटर्स, लोअर या एल केस फंक्शन है इसके लिए, ये आप MySQL फंक्शंस रिवाइज करेंगे तो उसमें मिलेगा, अगर आपने रिवाइज किया होगा तो पता होगा। रिटर्न्स नेम ऑफ द डे, फॉर एग्जांपल मंडे, ट्यूसडे, इस तरह के आने के लिए आपको डे नेम फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। रिटर्न्स वीक डे नंबर्स 1 2 3 4 5, 1 फॉर संडे, 2 फॉर मंडे एंड सो ऑन, तो इसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं डे ऑफ वीक फंक्शन। सो हेयर MySQL फंक्शंस पूछे गए हैं कि जस्ट नेम बताना है आपको कि फॉर दिस पर्पसेस जस्ट नेम आउट द फंक्शन ऑफ MySQL। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज ओवर। इसमें थर्ड में आपको ABCDEF पार्ट दिया गया था, जिसमें ABC 3 नंबर का, एक एक नंबर का था, और DEF 2 नंबर का था, कंप्लीटिंग 6 मार्क्स, आई मीन टोटल 6 प्लस 4 10 मार्क्स, 2 marks 2 marks 3 4 4 to 6 7 8 9 and 10। पहले 4 पार्ट एक एक नंबर के हैं, लास्ट के 3 पार्ट 2 नंबर के हैं, टोटल 10 मार्क्स। ये SQL का क्वेश्चन है। नाउ अगेन वी कम टू जावा प्रोग्रामिंग, क्वेश्चन नंबर 4। इसी में आपका GUI स्क्रीन दिया जाता है, जिस पर आपको 4 या 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी इसी में आपका एरर करेक्शन, इसी में आउटपुट, इसी में कन्वर्जन फ्रॉम फॉर टू वाइल, वाइल टू फॉर, बैक, एंड so many things are asked in this question only fourth, so it belongs to Java programming again। यानी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान रखना है, जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग कोड, स्विच सी, कर्ली ब्रैकेट, केस 9.0 और a इक्वल टू a+2 ब्रेक, केस 8.0 a इक्वल टू a+3 ब्रेक। यहाँ पर एरर क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट।
ध्यान से देखें, जब भी हम स्विच स्टेटमेंट पढ़ाते हैं तो मैंने कहा है कि स्विच स्टेटमेंट कैरेक्टर वैल्यू पर और इंटीजर वैल्यू पर काम करता है, फ्लोट और डबल पर काम नहीं करता है, स्ट्रिंग पर काम नहीं करता है, तो वो उसका ड्रॉबैक है। तो यहाँ लिखा केस 9.0 फ्लोट वैल्यू यहाँ पर यूज़ की जा रही है, केस 8.0 फ्लोट वैल्यू यूज़ की जा रही है, therefore it will not work, and this is the error that the value of C should not be either float or double type. This is the error. You have to mention and explain this. Now after this B part, what values will be displayed in J option pane when the following code is executed? अगर इसे एग्जीक्यूट किया जाए तो आपको जे ऑप्शन पेन डायलॉग में ए की वैल्यू डिस्प्ले की जा रही है, क्या आएगी? ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 2, यू कैन सी। और जब इसे हम ट्रेस करेंगे, ट्रेसिंग मैं बताऊंगा बाद में अगले वीडियोस में, मैं ट्रेस कैसे किया जाता है प्रोग्राम को। वाइल ए इज लेस देन 20, ए इक्वल टू ए प्लस बी, क्या ए की वैल्यू लेस देन 20 है? यस, दैट इज 5। तो ये ट्रू हो जाएगा वाइल का केस, और ट्रू होते ही कंट्रोल जो है ये लूप के बॉडी में अंदर आ जाएगा। यहाँ क्या करेगा? ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए 5 था, बी 2 था, तो 5 + 2 7 हो गया, और बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब ए की वैल्यू 7 हो गई है करेंटली, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी 7 - 2 5, बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको प्रिंट क्या करना है? ए की वैल्यू प्रिंट करना है, तो हमारा जो है पहली लाइन में 7 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप बाउंस होगा, अब ए की वैल्यू मेमोरी में कितनी है? 7 है, 7 इज लेस देन 20, ट्रू हो गया। तो यहाँ आ जाएंगे, हम लिखेंगे ए इक्वल टू ए प्लस बी, 7 + 5 दैट इज 20। ए की वैल्यू हो गई 7 + 5, 12 हो गई। और b इज इक्वल टू 12 minus 12 minus what was the value of b? 12, b इज इक्वल टू, बी की वैल्यू जो भी, अब इसे लिख करके करोगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि अभी इसको मैं इस तरह से माइंड में सारे वेरिएबल नहीं रह पाते हैं, तो इसे हमें लिख करके ट्रेस करना पड़ेगा। देन ऑब्वियसली इसका जो आउटपुट आएगा आप रन करा करके देख सकते हैं, 7 12 19 30। इसको इन्होंने ऐसे भी लिखा है वर्टिकली, और 7 12 19 31 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैसेज डायलॉग है, इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का कोई सवाल नहीं है। तो चाहे आप वर्टिकल आंसर लिखिए चाहे हॉरिजॉन्टल लिखिए, दोनों आंसर आपका सही आएगा। सिमिलरली हियर राइट द कोड गिवन इन फॉर लूप इंस्टेड ऑफ व्हाइल लूप। अब इसे फॉर लूप में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, मैं ये भी सिखाऊंगा आपको बाय मैनुअली, बाय राइटिंग ऑन सम बोर्ड एटसेट्रा इन कमिंग वीडियोस। then you will be able to understand how these things are done. int I is equal to 1 while I is less than equal to 5, इसको आप लिखेंगे फॉर ब्रैकेट में I is equal to 1 इनिशिएट कर दीजिए, सेमी कॉलन I लेस देन इक्वल टू 5, ये जो कंडीशन है ये यहाँ पर आ जाएगी बीच में, और I का लूप के अंदर क्या अपडेशन हो रहा है? I इक्वल टू आई प्लस 1, उसका अपडेशन आप यहाँ लिख सकते हैं, I इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं, I प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। और उसके बाद जो भी लूप की बॉडी में और स्टेटमेंट है, दे विल बी रिटन एज इट इज। तो इतना पार्ट ऑफ स्टेटमेंट इज बीइंग रिटन एज इट इज विद इन द फॉर लूप। फॉर लूप में आपने क्या करना है कि उस कंट्रोल वेरिएबल जिस पर लूप डिपेंड कर रहा है, इन दिस केस इट इज आई, तो आई का जो इनिशिएशन है वो लिखना है, इनिशियल वैल्यू आई इक्वल टू 1 सेमी कॉलन, और कंडीशन क्या लगी है? आई लेस देन इक्वल टू 5, आई लेस देन इक्वल टू 5 सेमी कॉलन। देन उसके बाद हर बार आई अपडेट क्या हो रहा है? आई इक्वल टू आई प्लस 1। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, फॉर आई इक्वल टू 1 सेमी कॉलन आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस आई इक्वल टू आई प्लस 1। ये लिखने के बाद अब आप जो है पूरी का पूरा स्टेटमेंट जो लूप के अंदर था, बाकी सारा इसके अंदर आप विद इन कर्ली ब्रैकेट लिख दीजिए। ये कन्वर्ट हो गया आपका फॉर स्टेटमेंट में। सो व्हाइल लूप इज कन्वर्टेड इनटू फॉर लूप, सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड इजी। तो जब आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बेसिक एलिमेंट्री कॉन्सेप्चुअल प्रोग्रामिंग आती है, बड़े बड़े प्रोग्राम ऐसे लिखने के लिए आपसे नहीं पूछा जाता है बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 4 में कि आप प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखो, फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम लिखो। सच प्रोग्राम्स आर नेवर आस्क्ड इन थ्योरी पेपर।
Now D part, you can see, write the value that will be stored in the variable after execution of the following code. इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इज 8, इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इज 10. दो केस दिए हुए हैं. अगर ए की वैल्यू 8 है तो यहाँ देखें क्या होगा, b इक्वल टू 9. इफ ए इज ग्रेटर देन b, ए की वैल्यू 8 है, 8 इज ग्रेटर देन 9, फॉल्स है, इसलिए ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, बिकॉज ए इक्वल टू ए प्लस 5 जो है वो इफ के अंदर आ रही है. इफ के अंदर कैसे आ रही है, अगर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं लिखा हुआ है तो इफ स्टेटमेंट के जस्ट बाद वाला एक स्टेटमेंट इफ के अंदर माना जाता है, उसके बाद वाले स्टेटमेंट इफ से बाहर माने जाते हैं, कॉमन. तो यहाँ आप देख लें ए ग्रेटर देन बी नहीं है, इट इज रिटर्निंग फॉल्स, इसलिए ए इक्वल टू ए प्लस 5 नहीं होगा. तो होगा क्या, ये कॉमन स्टेटमेंट है, ए इक्वल टू ए प्लस 2, ये हो जाएगा, ए इक्वल टू ए प्लस 2 हो जाएगा. यानी 8 थी, ए की वैल्यू 8 थी तो 8 प्लस 2 10 हो जाएगी. यू कैन सी द आउटपुट इज 10 हियर. यहाँ पर आउटपुट आप देखें फर्स्ट केस में 10 आ रहा है. अब दूसरा केस कहता है अगर ए की वैल्यू 10 हो तो क्या होगा, ए इज 10 एंड बी इज 9, तो 10 इज ग्रेटर देन 9. ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो ए इक्वल टू ए प्लस 5 एग्जीक्यूट होगा, यानी 10 प्लस 5 15 हो गया, और उसके साथ ये कॉमन लाइन तो होगी ही होगी, तो 15 प्लस 2 17 हो गया. सो 17 आपका यहाँ पर आंसर दिख रहा होगा राइट साइड में, जो आपकी मार्किंग स्कीम है, यहाँ से देख सकते हो. सिमिलरली another question you can see, what will be the value of I and Z after the following code is executed. I और Z की आपको वैल्यू बतानी है, इसको एग्जीक्यूट करा करके ये इटरेट करेगा बार बार, फिर से आपको ट्रेस करना पड़ेगा इस प्रोग्राम को. तो अभी देख लेता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाता है ठीक है, नहीं तो ट्रेसिंग जब मैं बताऊंगा देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेल. I इक्वल टू 0, Z इक्वल टू 10, डू लूप लगा हुआ है यहाँ पर, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज में, तो डू में ये एंट्री कर जाता है, ये पोस्ट टेस्टेड लूप है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट एंट्री. आई इक्वल टू आई प्लस 2 किया इसने, 0 प्लस 2 किया 2 हो गया, Z इक्वल टू Z माइनस 1 किया 9 हो गया Z. while I is less than 10, yes 2 is less than 10, then bounce back हुआ तो क्या हो गया, I इक्वल टू आई प्लस 2. अभी I की वैल्यू 2 थी तो ये 4 हो गई, और Z जो है एक कम होकर के 8 हो गया. एंड I फिर से जो है टेस्ट हुआ, दैट इज 2 प्लस 2 4, 4 इज लेस देन 10, बाउंस बैक तो ये 6 हो जाएगा, और ये एक कम होकर के 9, फर्स्ट इटरेशन में ये 9 हो गया था, फिर 8 हो गया, अब 7 हो जाएगा. इस तरह से एक एक ये कम होता रहेगा, एक ये दो दो बढ़ती रहेगी, और एक जब पीक सिचुएशन आ जाएगी, जब I ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो उस समय I की वैल्यू क्या है और Z की वैल्यू क्या है, ये आप जो है वो करंट वैल्यू आपको लिख देना है. उस समय I की वैल्यू 10 होगी और Z की वैल्यू 5 होगी. दिस इज द आउटपुट फ्रॉम दिस क्वेश्चन. नाउ आपका आप केस स्टडी आ जाता है, ये GUI स्क्रीन वाला क्वेश्चन. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंटर नेम निखिल खान लिखा हुआ है. चूज ऑप्शंस, कोर्स इन फार्मेसी, कोर्स इन आर्किटेक्चर, कोर्स इन आर्ट्स एंड डिज़ाइन, एलिजिबल फॉर कंसेशन, कैलकुलेट चार्जेस. इस पर क्वेश्चन क्या है कि इसमें तो जस्ट स्क्रीनशॉट दिया है. यस, नेम द स्टूडेंट इज एंटर्ड बाय द यूज़र, एनी वन कोर्स, फार्मेसी आर्किटेक्चर में से आपको एक सेलेक्ट करना है, ऑब्वियसली वहाँ पर ये रेडियो बटन है. If the student is eligible for concession, the required checkbox is selected by the user. All right. Now, based on the above course selected, fee per quarter is displayed in the appropriate text field according to the following criteria. Pharmacy की फीस 2000, architecture की 2500 है, arts and design 2300. If the student is eligible for concession, a concession of 7% fee per quarter is calculated as concession amount, otherwise concession amount is 0. Fee to be paid is the fee per quarter with the concession amount, if any deduction from it. Now see, help Priya in writing the code. When calculate charges button is clicked, fee per quarter, concession amount, fee to be paid should be calculated and displayed in the respective text fields. सो यहाँ पर आप देखें, फी पर क्वार्टर आपने स्टोर कर लिया, कंसेशन 0.0, फी टू बी पेड 0.0,
if J button 1, J radio button 1 is selected, then fee per quarter 2000. else if, यहाँ पर इस selected method का यूज आपका रेडियो बटन और चेक बॉक्स में होता है, whether it is selected or not. अगर selected है तो वहाँ पर उसकी कोडिंग कर दी जाती है. else if radio button 3 is selected, then fee per quarter 2300. अब ये सारा हो गया, 3 बटन पर कोडिंग कर दी. उसके बाद अगर चेक बॉक्स इज सेलेक्टेड, जे चेक बॉक्स 1 डॉट इज सेलेक्टेड, then concession is equal to fee per quarter multiplied by 0.07, that is 7%, and fee to be paid equal to fee per quarter minus concession. ये सारा कैलकुलेट करने के बाद जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट सेट टेक्स्ट फी पर क्वार्टर, जे टेक्स्ट फील्ड 3 डॉट सेट टेक्स्ट कंसेशन, जी टेक्स्ट फील्ड 4 डॉट सेट टेक्स्ट फी टू पे. तो ये जो वेरिएबल्स में थे उसको हमने टेक्स्ट फील्ड में सेट कर दिया, एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड नाउ. So this you are going to, get 4 marks against this coding. After that, clear button is clicked. All the text field, radio button, checkboxes should be clear. Clear button की कोडिंग, टेक्स्ट फील्ड को क्लियर करने के लिए आप जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट सेट टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को आप रिप्लेस कर सकते हैं नल से, विदाउट इन्वर्टेड कॉमा NULL स्मॉल में आप लिख सकते हैं. जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ भी आप नल लिख सकते हैं स्मॉल में. जे टेक्स्ट फील्ड 3 डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ भी नल लिख सकते हैं. चाहे ये एम्प्टी इन्वर्टेड कॉमास लिखें, चाहे नल लिखें स्मॉल में, देन ओनली द टेक्स्ट फील्ड विल बी क्लियर. और रेडियो बटन और चेक बॉक्स क्लियर करने के लिए रेडियो बटन नेम या चेक बॉक्स नेम डॉट सेट सेलेक्टेड ब्रैकेट में फॉल्स लिखना होता है, तो वो चेक बॉक्स अनचेक हो जाता है या रेडियो बटन अनचेक हो जाती है. सो दिस इज फॉर क्लियरिंग द चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन्स एंड टेक्स्ट फील्ड. नाउ फॉर एग्जिट, एग्जिट बटन इज क्लिक, द एप्लीकेशन शुड क्लोज. तो सिस्टम डॉट एग्जिट होता है ब्रैकेट में 0. यहाँ पर बच्चे सिस्टम डॉट आउट डॉट एग्जिट लिखने लगते हैं कंफ्यूज हो करके, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको एग्जिट करना है सिस्टम में, तो सिस्टम डॉट एग्जिट विद इन ब्रैकेट 0 लिखना है, दैट्स इट. सो दिस इज योर 4th क्वेश्चन सॉल्व्ड. दैट्स ऑल अबाउट 4th क्वेश्चन. 5th क्वेश्चन जो आपका आता है, ये MySQL से फिर से है. MySQL में एक आपको टेबल दी गई है. बेस्ड ऑन दिस टेबल नंबर ऑफ क्वेरीज आर बीइंग आस्क्ड. यहाँ पर देखें, आपको ये एक टेबल दी है जिसमें एफ कोड है, नेम है, फर्नीचर टेबल है. ये फर्नीचर कोड, नेम, प्राइस, मैन्युफैक्चरर डेट एंड वेंडर कोड समथिंग समथिंग. नाउ टू डिस्प्ले एफ कोड, नेम, प्राइस ऑफ आइटम दैट है प्राइस लेस देन 5000. तो टू डिस्प्ले एफ कोड, सेलेक्ट एफ कोड कॉमा नेम comma price from furniture where price less than 5000. So here you can write select f code comma name comma price from furniture where price is less than 5000. Similarly यहाँ साथ में मैं पैरेलल चला रहा हूँ, आप इधर भी देख सकते हैं. To display names and price of those furniture items that have table anywhere in their name. जिसमें टेबल हो किसी के नाम में, किसी फर्नीचर के नाम में, उसका नेम और प्राइस डिस्प्ले करना है. सो सेलेक्ट नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम फर्नीचर वेयर नेम लाइक परसेंट टेबल परसेंट. यहाँ पर लाइक क्लास का यूज किया जाता है पैटर्न मैचिंग के लिए. सेलेक्ट नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम फर्नीचर वेयर नेम लाइक परसेंट टेबल परसेंट. ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कमांड है, परसेंट टेबल परसेंट. नाउ टू डिस्प्ले डब्ल्यू कोड ऑफ द फर्नीचर आइटम्स देयर शुड बी नो डुप्लीकेट. तो डब्ल्यू कोड जो आपका है डिस्प्ले करने के लिए, डब्ल्यू कोड उसमें डुप्लीकेट नहीं आने चाहिए. तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डब्ल्यू कोड फ्रॉम फर्नीचर. सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डब्ल्यू कोड फ्रॉम फर्नीचर. नाउ to display the name and price increased by 500 of all the furniture items. Price should only be displayed as increased. There should be no increase in the data in the table. टेबल में डेटा इंक्रीज नहीं होना चाहिए. जो मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ उसमें कह रहे हैं कि प्राइस जो है सभी का 500 बढ़ करके आना चाहिए. तो सेलेक्ट कमांड का यूज होगा, ऑब्वियसली अपडेट का यूज नहीं होगा. सेलेक्ट नेम्स कॉमा प्राइस प्लस 500 from furniture over select name comma price plus 500
from furniture. Done. Fifth part, to display F code and name of each furniture item in descending order of F code. यहाँ पर आपको शॉर्टिंग करनी है, ऑर्डर बाई लगाना पड़ेगा. डिस्प्ले करना है, सेलेक्ट कमांड का यूज होगा. डिस्प्ले है तो आपको सेलेक्ट कमांड यूज करना है. सेलेक्ट F code कॉमा नेम फ्रॉम फर्नीचर, ऑर्डर बाय, F code DESC. I am repeating again. Select F code comma name from furniture, order by F code DESC. Sixth part. Sixth part देखें, to display the detail of all furniture items which have manufacturing date between this and this, including both. So display detail means star आ जाएगा. Select star from furniture where मैन्युफैक्चरिंग डेट बिटवीन, इसको डेट को ठीक से लिखना पड़ेगा, बिटवीन 2016-01-01 एंड, बिटवीन में एंड आता है, 2017-06-15 सिंगल कोट में. ये पहली कमांड आप देखें. इसके पैरेलल और कई कमांड्स दी गई हैं, वो भी आप देख सकते हैं, इसमें एक्सेप्टेड है वो. Select star from furniture where manufacturing date greater than equal to this and manufacturing date less than equal to this. Select star from furniture where manufacturing date between this and this is, ये भी एक्सेप्ट किया है एग्जामिनर्स ने. तो ये चारों फॉर्मेट एक्सेप्ट किए जाएंगे, लेकिन इसमें जो पहला फॉर्मेट है ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट है और ये आप लिखना है आपको. फर्स्ट फॉर्मेट बिटवीन का यूज करके और डेट अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में YYYY-MM-DD के फॉर्म में सिंगल कोट में. Now, seventh part is to display the average price of all the furniture items which are made of wood and W code as W02. See, display the average. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? Select ABG ब्रैकेट में प्राइस फ्रॉम फर्नीचर where W code is equal to सिंगल कोट में W02. All right, W02. Select ABG of price of लिखना नहीं है ब्रैकेट में, ABG ब्रैकेट में प्राइस फ्रॉम फर्नीचर where W code is equal to within single quote W02. Then eighth part देखें, to display W code wise W code and highest price of furniture items. See, it is a eighth part, W code wise. इसका मतलब W code एक बार अपीयर होना चाहिए और उसका हाईएस्ट प्राइस अपीयर होना चाहिए. तो जब भी किसी टेबल में एक ही बार मान लो W01 कई बार है, W02 कई बार है, तो उसका आपको अगर एक बार अपीयर करके उस पर मिन, मैक्स, एवीजी, सम, काउंट फंक्शन लगाने हैं, एग्रीगेट फंक्शंस, तो हमें ग्रुप बाय का इस्तेमाल करना होता है. सो एट्थ क्वेश्चन में आप ग्रुप बाय का इस्तेमाल करेंगे. लिखेंगे क्या? सेलेक्ट डब्ल्यू कोड कॉमा मैक्स ब्रैकेट में प्राइस फ्रॉम फर्नीचर ग्रुप बाय डब्ल्यू कोड. रिपीटिंग वंस मोर, सेलेक्ट डब्ल्यू कोड कॉमा मैक्स ब्रैकेट में प्राइस फ्रॉम फर्नीचर ग्रुप बाय डब्ल्यू कोड. डब्ल्यू कोड पर ग्रुपिंग हो जाएगी. नाउ नाइन्थ क्वेश्चन और टेंथ में पार्ट में, नाइन्थ और टेंथ पार्ट में ये आउटपुट पूछ रहा है आपसे. सेलेक्ट सम प्राइस फ्रॉम फर्नीचर वेयर डब्ल्यू कोड इक्वल टू W03. W03 का टोटल प्राइस बता रहा है, पूछ रहा है. W03 में आपके दो हैं, W03. इसका देख लें, यहाँ पर 2500 है, यहाँ पर 4000 है, तो अल्टीमेटली इट हैज बिकम 6500. तो 6500 में आप कॉलम हेडिंग बनाएंगे क्या? सम प्राइस, उसके नीचे लिख देंगे 6500, सम प्राइस बिलो इट 6500. देन काउंट डिस्टिंक्ट प्राइस फ्रॉम फर्नीचर. प्राइस को अलग अलग काउंट करना है, रिपीटेड को एक बार काउंट करना है. तो यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4 5 सारे अलग हैं, सारे डिफरेंट प्राइसेस हैं. तो 1 2 3 4 5. सो जब आप इसे काउंट करेंगे तो 5 तरह के प्राइस हैं. सो आंसर इज 5
और कॉलम हेडिंग काउंट डिस्टिंक्ट प्राइस बनेगी। इसे कॉलम हेडिंग लिखने के बाद इसके नीचे आप 5 लिख देंगे। So that's all about question number 5. That is from SQL. Now we come to question number 6. See question number 6. Write SQL query to create a table inventory. छठे क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि एक टेबल क्रिएशन आता है जिसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपके सामने देख रहे हैं। तो आप लिखेंगे क्रिएट टेबल इन्वेंट्री विद इन ब्रैकेट मटेरियल आईडी इंटीजर स्पेस प्राइमरी की कॉमा मटेरियल स्पेस varchar 50 स्पेस नॉट नल कॉमा कैटेगरी स्पेस कैर। आपको साइज नहीं दिया है तो साइज देना चाहें तो साइज दे सकते हैं अपने हिसाब से, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो कॉमा डेट परचेज स्पेस डेट में साइज नहीं दिया जाता है। देन क्रिएट टेबल का जो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था ब्रैकेट क्लोज किया जाएगा। यहाँ पर आप ये कमांड देख सकते हैं, सी द कमांड क्रिएट टेबल इन्वेंट्री ब्रैकेट मटेरियल आईडी इंटीजर प्राइमरी की कॉमा मटेरियल varchar 50 स्पेस नॉट नल कॉमा कैटेगरी कैर डेट परचेज डेट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। सो दिस इज डन। नाउ देयर आर टू टेबल्स गिवन, एक पेशेंट और एक टेस्ट, दो टेबल दी गई हैं इसमें, जिसमें पेशेंट में पी कोड नेम फोन डेट ऑफ एडमिशन एंड टेस्ट आईडी, और दूसरा जो है टेस्ट टेबल है जिसमें टेस्ट आईडी टेस्ट नेम कॉस्ट। इन दोनों टेबल में हमें रिलेशनशिप सेट करके जो क्वेरीज दी जाती हैं, उन्हें 3 क्वेरीज दी गई हैं, इनको सॉल्व करना होता है। सो यू कैन जस्ट सी द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि अच्छा, इसमें ये भी पूछ रहा है नेम द प्राइमरी कीज इन बोथ द टेबल्स एंड फॉरेन कीज इन पेशेंट टेबल। तो इसमें प्राइमरी की देखें, पी कोड यहाँ पर प्राइमरी की है, दिख रहा है साफ साफ, और टेस्ट कोड देखें, यहाँ पर टेस्ट कोड तो रिपीट है 102 यहाँ पर पी कोड प्राइमरी की है, टेस्ट आईडी जो है वो फॉरेन की है, यहाँ पर टेस्ट आईडी टेस्ट टेबल में प्राइमरी की है। तो ये पूछना चाह रहा है नेम द प्राइमरी की इन बोथ द टेबल्स। तो इसमें पी कोड प्राइमरी की है और टेस्ट टेबल में टेस्ट आईडी प्राइमरी की है। फॉरेन की इन पेशेंट टेबल में ये जो प्राइमरी की है यहाँ पर टेस्ट आईडी टेस्ट टेबल का, ये यहाँ पर लाया गया है टेस्ट आईडी, इसलिए यहाँ पर ये फॉरेन की है पेशेंट टेबल में, क्योंकि डेफिनेशन फॉरेन की है। अ कॉलम इन द करंट टेबल विच इज वर्किंग एज प्राइमरी की इन सम अदर टेबल। तो करंट टेबल पेशेंट में ये कॉलम है जो कि प्राइमरी की के रूप में यहाँ काम कर रहा है टेस्ट टेबल में, इसलिए टेस्ट आईडी यहाँ पर हमारा फॉरेन की हुआ, और टेस्ट टेबल में ये टेस्ट आईडी प्राइमरी की है। तो ये आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि प्राइमरी की दोनों टेबल में अलग अलग लिख दीजिएगा, एंड यू कैन राइट व्हाट इज फॉरेन की इन द पेशेंट टेबल। प्राइमरी की इन द पेशेंट टेबल पी कोड लिखा है, प्राइमरी की इन द टेबल टेस्ट आईडी, फॉरेन की इन द पेशेंट टेबल टेस्ट आईडी इज रिटन। नाउ वी कम टू द एक्चुअल क्वेरीज, जो कि दोनों टेबल को ज्वाइन करके क्वेरीज लिखी जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर के हैं। यू मस्ट स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन दिस क्वेरी इफ यू अंडरस्टैंड द ज्वाइन प्रॉपरली। टू डिस्प्ले नेम ऑफ द पेशेंट, इसमें बहुत इजी है। नेम ऑफ द पेशेंट पहली टेबल से आएगा, टेस्ट आईडी एंड टेस्ट नेम, टेस्ट आईडी और टेस्ट नेम, टेस्ट आईडी वहीं से ले लीजिए और टेस्ट नेम यहाँ से करस्पॉन्डिंग। those patients who were admitted between this and this, both the dates inclusive। तो ऑब्वियसली आप लिखेंगे सेलेक्ट नेम, नेम यहाँ पर एक कॉलम है नेम कॉमा टेस्ट आईडी, दो जगह है इसलिए आपको टेबल एलियस का यूज करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ की टेस्ट आईडी लाना चाहता हूँ इसलिए लिखूंगा पेशेंट डॉट टेस्ट आईडी, टेस्ट आईडी आ गया। टेस्ट नेम, टेस्ट नेम यहाँ पर है तो आप लिख सकते हैं टेस्ट डॉट टेस्ट नेम, या टेस्ट नेम अगर रिपीट नहीं होता, ऐसा कोई कॉलम जो रिपीटेड है दोनों टेबल में, उसी का खाली हम लिखते हैं टेबल नेम डॉट कॉलम नेम, दैट इज क्वालिफाइड नेम। अगर वो कॉलम रिपीटेड नहीं है कि यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, तो उसका इंडिपेंडेंट नाम लिखा जा सकता है। तो यहाँ टेस्ट नेम इसी में है केवल टेस्ट टेबल में, तो उसको हमें टेस्ट डॉट टेस्ट नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है।
और या एक पैटर्न आप बनाना चाहते हैं कि हर कॉलम में आप एलियस लगाएंगे, तो आप हर कॉलम में लगा दीजिए, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैंने लिखा क्या, सेलेक्ट नेम ऑफ द पेशेंट, तो पेशेंट डॉट नेम कॉमा पेशेंट डॉट टेस्ट आईडी कॉमा टेस्ट डॉट टेस्ट नेम। अब फ्रॉम में दोनों टेबल को रेफर करो, फ्रॉम पेशेंट कॉमा टेस्ट, कंडीशन डाल दो वेयर dt admit between 1 दिसंबर 2017, तो आप लिखेंगे इसे बिटवीन सिंगल कोट में 2017-12-01 एंड 2017 सिंगल कोट में -12-15. So here commands are written, you can just view it again and again. इसमें से आप देख करके कई फॉर्मेट दिए हुए हैं, आउट ऑफ दोज फॉर्मेट एनी फॉर्मेट इज एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड। लेकिन जो मैंने बताया वो आपका जो है, पहली कमांड जो मैंने बताई वो बेस्ट है। सेलेक्ट नेम, क्योंकि नेम क्वालिफाइड नहीं लिखा, नेम एक ही बार है, पेशेंट डॉट टेस्ट आई डी क्वालिफाइड लिखा, टेस्ट नेम फ्रॉम पेशेंट कॉमा टेस्ट वेयर पेशेंट डॉट टेस्ट आई डी इक्वल टू टेस्ट डॉट टेस्ट आई डी, वेयर में ये आप कंडीशन लगाएंगे, ये ज्वाइनिंग कंडीशन कहलाती है, मैं यहाँ पर बताना भूल गया। फ्रॉम के बाद आप दोनों टेबल्स को ज्वाइन करेंगे, जिसमें जो कॉमन कॉलम होता है उसके बेस पर ज्वाइनिंग कर दी जाती है वेयर क्लॉज से, वेयर पेशेंट डॉट टेस्ट आई डी इक्वल टू टेस्ट डॉट टेस्ट आई डी, पेशेंट डॉट टेस्ट आई डी इज इक्वल टू टेस्ट डॉट टेस्ट आई डी, दोनों मैच करने चाहिए। अब उसके बाद और एडिशनल कंडीशन है तो उसे एंड और के साथ अटैच कर सकते हो, एंड डेट एडमिट बिटवीन दिस डेट एंड दिस डेट। Now, second part is to display name of patients, test name and cost of test for those patients who have Sharma in their name. Display name of the patient, obviously select name, test name यहाँ से आना है तो कॉमा टेस्ट नेम, एंड कॉस्ट, कॉस्ट यहाँ से आनी है तो कॉमा कॉस्ट, दोनों टेबल इन्वॉल्व है इसलिए फ्रॉम पेशेंट कॉमा टेस्ट, वेयर ज्वाइन करो दोनों टेबल्स को, वेयर पेशेंट डॉट टेस्ट आई डी इज इक्वल टू टेस्ट डॉट टेस्ट आई डी एंड नेम लाइक परसेंट शर्मा परसेंट, जिसमें आपका शर्मा उसके नाम में हो, तो नेम लाइक परसेंट शर्मा परसेंट। फिर से मैं रिपीट करता हूं, सेलेक्ट नेम कॉमा टेस्ट नेम कॉमा कॉस्ट फ्रॉम पेशेंट कॉमा टेस्ट वेयर पेशेंट डॉट टेस्ट आई डी इज इक्वल टू टेस्ट डॉट टेस्ट आई डी एंड नेम लाइक परसेंट शर्मा परसेंट विद इन सिंगल कोट। तो ये आपकी कमांड हो गई सेकेंड, 2 मार्क्स। अब थर्ड क्वेश्चन है कि इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ दोज टेस्ट्स इन द टेबल टेस्ट बाय 50 रुपीज दैट हैव कॉस्ट बिलो 200, जिसकी कॉस्ट 200 से नीचे है उसमें 50 रुपये इंक्रीज कर देना है। तो वेरी सिंपल है, ये सिंगल टेबल बेस्ड क्वेरी है, इंक्रीज करना, इसलिए अपडेट कमांड यूज कर लेंगे। अपडेट टेस्ट, दूसरी टेबल का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, अपडेट टेस्ट सेट कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट प्लस 50 वेयर कॉस्ट लेस देन 200। यहां देखें, अपडेट टेस्ट set cost is equal to cost plus 50 where cost is less than 200. So this is your 2 marks question update command. So this way your question number 6 is over, having 3 queries, two queries using join and third query is for update command, and one question is about primary key and foreign keys, and first part belongs to creation of table, completing 10 marks. Question number 6 belongs to MySQL. Now the last question. 7th question belongs to IT application. Here, how does e-governance help in building trust between the government and citizens? So this question, how e-government help in building trust between government and citizens, transparency of government process, policies and decisions, ई गवर्नमेंट से सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहती हैं, एवरीथिंग इज ऑन द वेबसाइट सो पब्लिक कैन सी
what are the rules and regulations, and follow it. Awareness about new policies and facilities being offered by the government. Time to time it is updated on the website. Enabling citizen engaging in the policy process. Reduce the waiting time. Practice like influences and bribing or रिड्यूस्ड रिश्वतखोरी जो है वो रिड्यूस होती है, वेटिंग टाइम कम हो जाता है. तो ऑब्वियसली दीज आर द आई मीन हाउ ई गवर्नेंस हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन. So it creates the trust between the citizens of the country and government because everything is transparent. How e-learning helps student learn at own pace. Student can go through the learning nowadays during COVID-19. ये everything is going on e-learning. कोई वीडियो बना करके भेज रहा है, कोई जो है ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा है, कोई कंटेंट भेज रहा है, कोई पिक्चर भेज रहा है, कोई पीडीएफ फाइल भेज रहा है. All these things are the part of e-learning. Number of websites and YouTubers are busy like me. They are busy in making the videos and e-learning content for the students. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट कैन गो थ्रू द ई लर्निंग मटेरियल एनी नंबर ऑफ टाइम्स एज पर हिज और हर लर्निंग एबिलिटीज़. आप बीच बीच में पॉज करके देख सकते हैं, रोक करके देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं. स्टूडेंट कैन स्टडी एट ओन कन्वीनियंट टाइम एनी वेयर एनी टाइम. सो दीज आर द रीजन्स हाउ ई लर्निंग हेल्प स्टूडेंट learn at their own pace. Now C part, as I told you that the purpose of the controls are being written here, and you have to write the name of the controls, which control will be used for this purpose. See, list box, combo box, text field, text area, radio button, check box, label, command button में से आप क्या use करेंगे for these purposes. You have to find out and write the answer. Half marks each. To let the user enter name, obviously text field use करेंगे नाम enter करने के लिए. To let the user enter mobile number, this is also text field. To let the user choose one profession out of the categories teaching, non teaching, research, scholar. तीन ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना है आपको, तो आप रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे. कई बार कोई बच्चा कॉम्बो बॉक्स लिख देता है तो वो भी सही माना जाएगा. हालांकि कॉम्बो बॉक्स में ज़्यादा आइटम्स हो तो हम कॉम्बो बॉक्स का यूज़ करना चाहिए, लेकिन क्वालिटी वही है कि आउट ऑफ मल्टीपल ऑप्शन इन कॉम्बो बॉक्स ऑल्सो वी कैन सेलेक्ट वन. Fourth point, to let the user select facilities out of gym, yoga, table tennis, badminton and aerobics. More than one facility may be chosen. So यहाँ भी आप जो है एक से ज़्यादा फैसिलिटी चूज़ करने के लिए जिम, योगा, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और एरोबिक्स में से तो कई ऑप्शन है, 5-6 ऑप्शन है, इसमें से एक वन और मोर फैसिलिटीज आर टू बी चेक. सो ऑब्वियसली फॉर दिस चेक बॉक्स इज रिक्वायर्ड. और कोई अगर लिस्ट बॉक्स भी लिख देता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट. सो सेवेंथ क्वेश्चन में आपने देखा ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट. सी पार्ट में इस तरह का आपको 4 कंट्रोल पूछा जाएगा, पर्पस दिया रहेगा. और ए और बी पार्ट में ई गवर्नेंस, ई बिजनेस, ई कॉमर्स में से आपको 2+1 मार्क का कोई क्वेश्चन 2 पार्ट दिया जाएगा. सो दिस इज वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ 2018 board exam CBSE, and in this way you try to solve other sample papers and question papers of previous years. Hope that you have liked the way I have explained all the questions from question number 1 to question number 7, and it might have clear you the image how the structure of the question paper will be there in the board exam. So there should not be any fear because you are well aware of the question paper right now. So in coming videos I will be discussing each question in detail. So question number 1, question number 2 up to question number 7, each questions will be discussed in detail, and what sort of questions may be asked in that, in previous years what question was asked. So such discussion will be done. I hope that you have understood well and liked this video for your board examination. All the best for your board examination, and I will try my level best to come up with other good videos which will help out in getting the good marks, rather 70 out of 70 in board exam. So thank you for listening to me with patience. Thank you very much. Thank you. All the best.